آغاز کریں گے وزیر خزانہ کی دھواں پریس کانفرنس سے، جنہوں نے سابق حکومت کو رڈار پر رکھ لیا ہے، تاک کر وار کیے ہیں۔ کہتے ہیں عمران خان نے ملک کو تباہ کر دیا، معاشی تباہی کی ذمہ دار پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ملک کو قرضوں میں ڈبو دیا۔ شوکت ترین 9.5% خسارہ چھوڑ کر گئے، دوسروں پر کیچڑ اچھالنے والے عمران خان اپنے کیے کا جواب دیں۔ وزیر خزانہ کا 150 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے دکانداروں کو ٹیکس چھوٹ دینے کا اعلان۔ اگست میں روپے کی قدر میں بہتری کی نوید بھی سنا دی گئی۔ ہم نے تو کنسالیڈیشن کی ہے۔ تو شخص اس نیچ پہ لے کے آیا تھا وہ تو پی ٹی آئی ہے، وہ تو عمران خان۔ 4.25 سال کے اندر 20,000 ارب روپے کا قرضہ بڑھا دیا، جو کہ 80% قرضہ تھا، 79% ایگزیکٹلی۔ جو پارٹی کہتی تھی کہ ہم قرضہ کم کرنے آئے ہیں، اس پارٹی نے جو 71 سال میں قرضہ لیا تھا اس کا 80% قرضہ جو ہے وہ 4.25 سال میں لے لیا۔ یہ قرضہ کم کیا ہے۔ جو پارٹی کہتی تھی کہ ہم بجٹ ڈیفیسٹ کم کرنے آئے، اس نے پاکستان کے 4 سب سے بڑے بجٹ ڈیفیسٹ بدستور رن کریں۔ 9.5% سے زیادہ بجٹ ڈیفیسٹ شوکت ترین صاحب چھوڑ کے۔ پاکستان میں مانسون کی بارشوں اور سیلاب سے تباہی کا سلسلہ جاری ہے۔ بلوچستان کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب کے کئی شہر سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں۔ پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے، جس کے باعث کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو رہی ہیں۔ مزید سیلاب کی صورتحال اس رپورٹ میں۔ موسمیاتی تبدیلی کی تباہ کاریاں، ملک کے 3 صوبے بارشوں اور سیلاب سے متاثر۔ بلوچستان میں سب سے زیادہ تباہی آئی۔ بلوچستان میں قلعہ سیف اللہ خضدار میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سیلاب نے کئی گھر تباہ کر دیے، لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری ہے۔ سندھ میں کنبر شہداد کوٹ میں بلوچستان سے آنے والے سیلاب نے تباہی پھیلا دی۔ کیرتھر کے پہاڑی سلسلوں سے آنے والا پانی دادو میں داخل ہو گیا، کئی بستیاں زیر آب آ گئیں۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے۔ جھنگ اور مظفر گڑھ میں سیلابی ریلا سب کچھ بہا کر لے گیا، لوگ پانی میں گھرے ہوئے ہیں۔ مٹھن کوٹ کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے۔ راجن پور میں پاک فوج نے ریلیف آپریشن شروع کر دیا۔ جنوبی پنجاب میں رجحان سے سیلاب نے تیار فصلیں تباہ کر دی۔ چونیا میں بھی بارشوں سے گلی محلے پانی سے بھر گئے۔ بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ عمارتوں کی تعداد 13,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ صوبے میں مختلف علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، تاہم نوشکی میں امدادی سامان نہ ملنے پر اہل علاقہ نے احتجاج کیا ہے۔ سیلاب کی وجہ سے ریلوے لائن متاثر ہونے سے کوئٹہ اور ایران کے درمیان ٹرین سروس معطل ہے۔ کوئٹہ سے عصمت امان سملانی۔ سیلاب سے بری طرح سے متاثر ہونے والے علاقے نوشکی میں متاثرین بن گئے سراپا احتجاج۔ نوشکی شہر اور احمد وال میں ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی۔ نوشکی میں سیلاب سے مکانات کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق نوشکی سمیت بلوچستان کے دیگر اضلاع میں متاثرہ مکان کی تعداد 13,320 ہو گئی ہے۔ جو بھی نقصانات ہیں بلوچستان گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ اور تمام ادارے مل کر ان کو دوبارہ بحالی، ریبلیٹیشن اور ریلیف میں کہیں پہ ہم یہ کمی بیشی نہیں کریں گے۔ نجی اور سرکاری املاک کو پہنچنے کے علاوہ کوئٹہ اور ایران کے درمیان ریلوے لائن کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، جس کی وجہ سے ریل سروس معطل ہو گئی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عصمت امان سمالانی، نیو، کوئٹہ۔ راجن پور میں سیلاب نے پہلے سے ہی مشکلات کا شکار غریب عوام کی زندگی کو مزید مشکل تر بنا دیا ہے۔ سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جبکہ انتظامیہ اور مقامی سیاسی قیادت سیلاب زدگان کی مدد کو تاحال نہیں پہنچ سکی ہے۔ مزید وہاں کی صورتحال دکھا رہے ہیں ہمارے نمائندے راجن پور سے محمد عطا۔ آج بالکل جو ہے راجن پور میں کوہ سلیمان کی جانب سے آنے والے سیلابی ریلوں میں کی لپیٹ میں راجن پور کے بیشتر علاقے آنے کے بعد لوگ جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے محفوظ مقامات پر منتقلی جو ہے انہوں نے شروع کر دیا۔ اور اسی طرح کچھ قبیلے کے لوگ میرے ساتھ موجود ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے یہاں پر منتقل ہوئے۔ یہاں پر ایک بزرگ میرے ساتھ موجود ہے، جی آپ مجھے بتائیے گا۔ کوئی مدد نہیں تھا، کوئی بندہ نہیں آیا تو ہوں رہو مہربانی کرو، کوئی وزیر اعلیٰ نو کوئی ٹینٹ شینٹ ملیا ونجے۔ انتظامیہ دا کوئی بندہ ہے، ضلع انتظامیہ دا کوئی بندہ؟ کوئی بندہ نہیں آیا،
कोई खाने दा पुछ गए टेंट दा कोई ना कोई सरदार है, ना कोई हमसाया, ना कोई कशाय, कोई ऐसा नहीं पूछा। लोग हैं खुले आसमान तले जो है यहाँ पर रह रहे हैं और किसी किस्म के जो इंतजामी के नाम से इनसे कोई किसी ने पुरसाने हाल तक नहीं पूछा और ना ही किसी किस्म का जो खाना है इंतजामी के नाम से उनको जो है दिया गया है। जबकि ये लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं और अपनी मदद आपके तहत जो यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं खुले आसमान तले। लेकिन जब बारिश होती है इन लोगों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इनकी तरफ से खासकर हमारे जो ज़िला इंतजामिया को कहा जा रहा है कि थोड़ी सी तकलीफ़ करे, शायद ये जो है टैक्स देते हैं और जो है जबकि वो भी इनके ही टैक्स से जो है तनख्वाह लेते हैं। लेकिन अभी तक जो है बहरहाल यहाँ पर इंतजामी की तरफ से कोई नहीं आया। जी बहुत शुक्रिया आपका। और मुजफ्फरगढ़ में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है जहां दरिया चनाब में सैलाब का खतरा है और पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया है। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। अहवाल दिखा रहे हैं फरहान हाशमी। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मौजा सुनकी दरिया चनाब पर। दरिया चनाब में जो इस पानी की सूरत हाल है, इस वक्त तकरीबन 1.25 लाख के करीब जो पानी है वो दरिया चनाब से गुजर रहा है और जिसके बायस जो है मुरादाबाद, रंगपुर, ठट्टा सियाला, दुआबा, सुनकी और चक्रोहाड़ी के जो है इलाके हैं, जो बेट के इलाके हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। इसमें लोगों की जो है जो फसलें हैं जिसमें सब्जियाँ हैं, बागात हैं, आम के बाग हैं, जो दीगर बागात हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं, जिसके बायस जो है इन लोगों का जो है करोड़ों रुपए का जो इन फसलों का नुकसान हो चुके हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत जो यहाँ से नकल मकानी पर भी जो मजबूर है और इसी तरह वो जो अपनी फसलों को भी अगर जो काट सक रहे हैं वो काट कर इधर से जो मंडियों तक मुंतकिल कर रहे हैं। इंतज़ामिया की जानिब से जो है इन मौज़ूआत में अलानात भी करवाए गए हैं ताकि इन मौज़ूआत को जल्द से जल्द खाली करवाया जाए। जी गिलगित बल्तिस्तान के जिला हिसर में बारिश का सिलसिला जारी है। बालाई इलाके दहमेल में सैलाब की वजह से बैनुल सूबाई सड़क बंद है। जमीनी राबिता मुनक़ता होने की वजह से सयाह फंस कर रह गए। मज़ीद मालूमात आबिद हुसैन से। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गिज़र में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद मौसम एक जानिब सुहाना हो चुका है। गर्मी की जो शिद्दत है उसमें कमी देखी जा सकी है, तो दूसरी जानिब यहाँ के मकीनों को मुश्किलात भी दरपेश है। ज़िला गिज़र के बलाई इलाके दहीमल में सैलाब ने तबाही मचा दी, जिसके बाद गिलगित चतराल जो सड़क है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो चुकी है, जबकि वहाँ 5 जो घराने हैं वो भी सैलाब की नज़र हो चुके हैं। दूसरी जानिब ज़िला गिज़र के बलाई इलाके उमलसद में आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी है। वहाँ पर सैलाब की वजह से कई जो घराने हैं वो मुतासिर हो चुके हैं और इस वक्त भी ज़िला हेडक्वार्टर घाकुज में मैं मौजूद हूँ, तो यहाँ पर भी वक्फे से बारिश और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद मौसम इंतहाई सर्द भी हो चुका है और यहाँ सैलाबी सूरत हाल है और यहाँ के मकीनों को मुश्किलात भी दरपेश है। तूफानी बारिशों और सैलाब से दरियाई सिंध में गुद्दू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। हालात क्या हैं ये हम जानेंगे अपने नुमाइंदे से हम जानेंगे जो कि वहीं पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की वजह से जो है इस वक्त गुड्डू बैराज में पानी में मुसलसल इजाफा दिखाई दे रहा है और इस वक्त मैं गुड्डू बैराज पर मौजूद हूँ। इस वक्त गुड्डू बैराज में पानी की आमद जो है वो 3,11,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जबकि पानी का अखराज जो है वो 2,86,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। और इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों से जो है वो गुड्डू बैराज में मुसलसल पानी में इजाफे की वजह से और जो यहाँ के बचाव बंद हैं उन पर भी पानी का जो है वो जोर है। और महकमा एलिगेशन की जानिब से जो है कच्चे के रहायशी इलाकों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और उनको हिदायत भी जारी की गई है कि महफूज मकामात पर फौरी मुंतकिल हो जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि घोटकी फीडर और दीगर जो कैनाल निकल रहे हैं यहाँ से जो उनके जो बचाव बंद हैं वो भी कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं और पानी का जो है वो शदीद दबाव है। जी आगे बढ़ते हुए कुछ सियासी मैदान से खबरें। तो पीटीआई की 4.25 साल की हुकूमत में डॉलर 65 रुपये, जबकि मौजूदा हुकूमत के 3 माह में 51 रुपये महंगा हुआ। इसी तनासुब से दीगर गैर मुल्की करेंसीज की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 4.25 साल की हुकूमत में डॉलर 65 रुपये, जबकि मौजूदा हुकूमत की 3 माह में 51 रुपये महंगा हुआ है। अगर इस तनासुब से कीमतें बढ़ती रहें तो दीगर गैर मुल्की करेंसीज की कीमतें भी बढ़ती रहेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 4.25 साल की हुकूमत में डॉलर 65 रुपये महंगा हुआ है, जबकि मौजूदा हुकूमत की 3 माह में 51 रुपये महंगा हुआ। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर। अली शेर, क्या मालूमात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पीटीआई के 4.25 साल और इत्तेहादी हुकूमत के 3.5 माह में जो मुख्तलिफ गैर मुल्की करेंसियां हैं उनका जो है मवाजना सामने आ गया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4.25 साल में डॉलर 65.50 रुपये महंगा हुआ, जबकि मौजूदा हुकूमत के 3.5 माह में 51 रुपये महंगा हुआ।
तहरीक इंसाफ के दौर में बरतानवी पाउंड जो था वो जब 84 रुपए पे था, जबकि यूरो जो है वो 56.48 रुपए महंगा हुआ। यानी यूरो और जो बरतानवी पाउंड है वो 84 और 56 रुपए महंगे हुए, जबकि मौजूदा जो हुकूमत है उसके 3.5 माह में जो बरतानवी पाउंड है वो 40, जबकि यूरो 38 रुपए महंगा हुआ है, और रियाल जो है वो 12.5% रुपए जो है वो महंगा हुआ है। इस तरह मुख्तलिफ जो करेंसीज हैं उनमें खासा जो है वो बढ़ोतरी देखने में आई है। कीमतें बढ़ती रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका अली शेर। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और साबिक वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल और पंजाब के इंतज़ामी मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। सूबे के आवाम को रिलीफ देने के इक़दामात पर भी बातचीत की गई। मज़ीद क्या डिस्कस किया गया ये हम जानेंगे ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा से। जी अयाज। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से आपसे कुछ देर पहले चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही की मुलाकात शुरू हुई है और मुलाकात अब तक जारी है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर के अलावा सूबे के अवाम को रिलीफ देने के इक़दाम पर बातचीत हो रही है। इमरान खान ने पंजाब से गैर कानूनी हुकूमत के मुकम्मल खात्मे पर चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही को मुबारकबाद दी है। चौधरी परवेज़ इलाही की सियासी वफादारियां बदलने वालों के खिलाफ भरपूर मौके पर खड़ा रहने पर इमरान खान की सियासी तस्वीर को सराहा है। इमरान खान की पंजाब के अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम तर काविशें बरोएकार लाने की हदायत जारी की है। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने सैलाब मदद के लिए किए गए हुकूमती इक़दाम से इमरान खान को आगाह किया। इमरान खान की मुतासरा इलाकों में अंदाजी सरगर्मियों को मजीद तेज करने की हिदायत। बहुत शुक्रिया आपका अयाज शुजा। खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का यौम शहादत आज 1 मुहर्रमुल हराम को मनाया जा रहा है। उलमा अपने खताबात में खलीफा दोम की इस्लाम के लिए खिदमत को उजागर कर रहे हैं। इस्लामी साल की पहली तारीख आज अमीरुल मोमिनीन मुराद क़ल्ब रसूल फातिह बैतुल मक़दस खलीफा दोम फारूक आज़म सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का दिन है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आपका नाम उमर बिन खत्ताब, लक़ब फारूक और कुनियत अबू हफ्सा थी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से नबूवत के ऐलान के 6ठे साल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 35 बरस की उम्र में इस्लाम कबूल किया, जिसके बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना रहे। हज़रत उमर का ज़माना खिलाफत इस्लामी फतूहात का दौर था, जिसमें इस्लामी सल्तनत की हदूद 22 लाख मुरब्बा मील तक फैली हुई थी। अपने दौर खिलाफत में हज़रत उमर फारूक ने ईरान और रोम जैसी ताकतों को शिकस्त दी, बैतुल माल का शोबा फाल किया, इस्लामी मुमलिकत को सूबों और अज़ला में तकसीम किया। 27 ज़िलहज 23 हिजरी को नमाज फजर की इमामत के दौरान अबू लुलु फिरोज नामी शख्स ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खंजर से जख्मी कर दिया, जिसके 3 रोज बाद 1 मुहर्रमुल हराम 24 हिजरी को आपने जाम शहादत नोश फरमाया। आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू मुबारक में मुदफ़न हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए नेहा।